we'll discuss about the electoral politics. Means the electoral politics means what? In electoral politics today we'll discuss about the how do we conduct the election, means our election commissions. What are the way to conduct the elections? How do we can say elections are good for us, merit and demerit of election, we'll discuss. And in different region, how it is conducted, what are the way such election we can say democratic, we can trust on that कि हम उस पर ट्रस्ट कर सके on elections. What are the powers of election commission? We'll discuss in this chapter कि what are the power given to the EC who appointed by president. So in this chapter we'll discuss about the power of EC, how it declared the means the till from the starting of election date to till declaration date, all the work should be done by the all officers will work under the election commission. We'll discuss the nomination form, how the candidate fill up the nomination form. So all this detail we'll discuss in this chapter. So before starting this chapter, we start from the introduction. So earlier we have discussed in class 8, there is no such chapter related to the elections. In 7th and 6th we have discussed the two different elections. In 7th we have discussed about the state elections, and in class 6 about local election. So first I am going to start from the introduction. What is the elections and how it conduct in our country. So there are three levels, we can say that are the federalism, and three levels are the federal level, local, state and center. So these are the three levels, local, state and center. So I am giving the introduction how the elections are conducted at the local level. Now local level means what? At the local area, which is the like smallest unit of our country. जो हमारे कंट्री की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मानी जाती है, डेट आर द ग्राम सभा मीन्स द विलेज. विलेज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन आवर कंट्री. तो फर्स्ट वी आर टेकिंग अबाउट द लोकल इलेक्शंस. तो आज पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रॉम द इंट्रोडक्शन मीन्स द हाउ टू वी कंडक्ट इलेक्शन इन आवर कंट्री. तो फर्स्ट लोकल इलेक्शंस आ रहे हैं. यू नो विलेज आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्राम्स. तो एक ग्रुप ऑफ द विलेजेस, 2 or 3 villages or sometime maybe the one village, or out to the this group created, it depend on the population size beta. It depend on population size. Group are conducted on the basis of populations. So group of the one village maybe sometime 2 village, more than 2 or 3 villages. This is known as the gram or village, or group of the 2 or 3 villages that is known as the gram panchayat. तो जीपी मीन्स द ग्राम पंचायत. तो फर्स्ट यूनिट जो सबसे स्मॉल है, जीपी मीन्स ग्राम पंचायत. आर यू हियरिंग माय वॉइस? Yes. तो दिस इलेक्शंस आर नोन एज द. Yes, sir. इंट्रोडक्शन दे रहा हूं. आई होप यू नो ऑल द दिस थिंग्स. मुझे पता है आप सब जानते हो, अर्लियर यू हैव स्टडी, बट जस्ट ए इंट्रोडक्शन. ओके. तो दिस इलेक्शंस आर कंडक्टेड, दैट इलेक्शन इज नोन एज द ग्राम पंचायत इलेक्शन. तो representative or elected leaders from this election are known as the S. S means the सरपंच. जो elected leaders होता है इस एरिया का, these are known as the सरपंच. इसको सरपंच बोला जाता है. Who will elect those citizens comes under the ग्राम पंचायत. जो citizen इस ग्राम पंचायत के अंडर आते हैं, those who are 18 years or 18 years above, जो voting right जिनको मिला है, they will elect the सरपंच. ये सरपंच होते हैं. और each villages are divided into different ward. जैसे suppose this villages are divided 1 or 2 ward, 3 ward, 4 ward, ward number 5, ward number 6. So there will be 6 ward punch will be elected. तो यहाँ से जो each ward से elected होंगे, that is known as the ward punch. WP means the ward punch. तो total number of ward punch होंगे 6. Okay. और one of them होगा इन्हीं में से सरपंच. तो आउट ऑफ 6 फिर किसको इलेक्ट करेंगे? वाइस सरपंच मतलब उप सरपंच. तो
उप सरपंच को ये 6 में से जिधर मैक्सिमम वोटिंग होगी, मींस द 4 वोट जिसको मिलेंगे, he become or she become a उप सरपंच, मींस द वाइस सरपंच, डिप्टी सरपंच, उप सरपंच होगा। तो दिस इज द वे इलेक्शन आर कंडक्टिंग इन विलेज एरिया ओनली। नाउ डिस्कस अबाउट द सिटी, अर्बन। In urban area, city divided into different ward. Maybe one city divided into 1, 2, 3, 4, 5, 6 ward, or maybe जैसे चित्तौड़ सिटी डिवाइडेड इनटू 45 वार्ड, अभी ज्यादा वार्ड हो गए, अभी शायद 55 या 54 वार्ड है। तो each city divided into different ward. Of each ward 2 elected members in urban area, not in rural. In urban area known by the ward member. अब वार्ड पंच की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, वार्ड मेंबर, नॉट अ डब्ल्यूपी, वार्ड पंच नहीं आएगा। W मींस वार्ड एंड M मींस मेंबर, वार्ड मेंबर हम बोलते हैं उसको। एंड ए वार्ड मेंबर जो 6 वार्ड मेंबर है, दे विल इलेक्ट, जो सबसे ज्यादा वोटिंग होगी जो इलेक्ट करेंगे जो भी। अब दिस आर नोन एज द चेयरमैन, इसको हम चेयरमैन बोलेंगे, जहां पे म्युनिसिपल काउंसिल होती है और म्युनिसिपल काउंसिल में इलेक्शंस होते हैं। ओके, तो चित्तौड़ जैसे म्युनिसिपल काउंसिल है, तो दिस इलेक्शंस नोन एज द नंबर ऑफ सिटी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड, और डिफरेंट वार्ड में ईच वार्ड रिप्रेजेंट द 1 वार्ड मेंबर्स एंड वार्ड मेंबर्स विल बी इलेक्ट द चेयरमैन। अब व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द रूरल एंड अर्बन इलेक्शन? लिसन, मेजर डिफरेंस बिटवीन urban election and rural. In rural area, those elections are conducted for a sarpanch. These elections are not considered belong with any political party. बिना political party के वो election होते हैं, यानी सरपंच नॉट अ बिलोंग फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी, वहां पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सिंबल रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है उनके लिए। इन दिस इलेक्शंस पॉलिटिकल पार्टी होती है, मींस बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, बीएसपी, एसपी, कुछ भी रिप्रेजेंट हो सकता है। तो दिस इलेक्शंस आर कंसीडर ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी जो अर्बन में हो रहे हैं। चेयरमैन जिसको चूज किया जा रहा है बीजेपी का बना या कांग्रेस का, जैसे दिस टाइम कांग्रेस मिस्टर संदीप शर्मा, प्रीवियस ईयर जो इससे पहले वाले इलेक्शन में मिस्टर सुशील शर्मा वाज फ्रॉम बीजेपी। तो दिस इज द पॉलिटिकल पार्टी। यहाँ पे जो इलेक्शंस हो रहे हैं अर्बन एरिया, इट कंसीडर बिलोंग टू द पॉलिटिकल पार्टी, but sarpanch elections are not considered with any political party. This is the major difference between the rural and urban election. तो दिस इलेक्शंस, और सपोज जैसे जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ वार्ड मेंबर होंगे, एनी वन पॉलिटिकल पार्टी, दे विल इलेक्ट या मे बी द चूज देयर चेयरमैन, उन्हीं का चेयरमैन बनेगा। तो दिस इज द इलेक्शन कंडक्ट इन लोकल यूनिट, जो सबसे लोकल यूनिट होती है वहां पे जो इलेक्शंस होते हैं थ्रू दिस वे होते हैं। अब जस्ट डिस्कस अबाउट द अनदर वन इलेक्शन दैट इज गोइंग ऑन इन योर चित्तौड़ विद इन द फ्यू मंथ, आई होप इन द month of December in your Chittod election will start in urban rural areas. That elections are considered with the Pradhan election. Pradhan elections कैसे होते हैं? Earlier we have discussed the Gram Panchayat. Gram Panchayat we have discussed. अभी हमने डिस्कस किया। तो if there are the this type of 3 Gram Panchayat in one tehsil, 2 villages only. तो 1 ग्राम पंचायत नंबर 2, ग्राम पंचायत नंबर 3। ओके, इफ देयर आर 3 ग्राम पंचायत, तो इस ग्राम पंचायत वोटर्स रिप्रेजेंट द प्रधान, P4 प्रधान। ये प्रधान इलेक्शंस होते हैं, यहाँ का एक प्रधान, ये पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड होते हैं। तो दिस टाइप ऑफ इलेक्शन नोन एज द प्रधान। अब व्हाट आर द रोल ऑफ प्रधान इलेक्शंस? प्रधान विल बी फोकस एंड सुपरवाइज द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत। जैसे प्रधान का क्या काम है, सरपंच ने डेवलपिंग वर्क करवा रहा है नहीं करवा रहा, इज सुपरवाइज द ऑल ग्राम पंचायत, रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्राम पंचायत, और ऑल प्रधान विल रिप्रेजेंट द तहसील। ये तहसील लेवल पे होते हैं, दैट इज नोन एज द प्रधान इलेक्शन। ये सेकंड टाइप ऑफ इलेक्शन इन रूरल एरिया। अब सी द थर्ड टाइप्स ऑफ इलेक्शन in the rural area which consider the
जिला परिषद इलेक्शंस, जो जिला परिषद इलेक्शन टू रिलेटेड। अब जैसे सपोज दिस एरिया इज कंसिडर द वन तहसील, अब ये सब एरिया अगर हम वन तहसील मान लेते हैं तो ऐसे फॉर एग्जांपल वन तहसील, टीएच लिखा है मैंने, वन तहसील टीएच तहसील, तो दिस इलेक्शंस कंसिडर द तहसील इलेक्शन मींस द प्रधान हो गए और इनका जो डायरेक्टर इनको चूज करते हैं, दिस एरिया रिप्रेजेंट बाय द डायरेक्टर आल्सो। अब जो तहसील है इन चित्तौड़ देयर आर द 10 तहसील, अगर चित्तौड़ के अंदर 10 तहसील इज जस्ट एग्जांपल, इफ देयर आर 10 तहसील इनसाइड द चित्तौड़गढ़, ये चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट है, देयर आर 10 तहसील 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। तो दिस आर द 10 तहसील इनसाइड द चित्तौड़। अब चित्तौड़ में 10 तहसील है तो इस तहसील में भी रिप्रेजेंट, यहाँ पे पहले क्या हो रहा था तहसील के सब पार्ट में प्रधान इलेक्शन, अब इस तहसील रिप्रेजेंटेटिव जिला परिषद जेडपी, जिला परिषद रिप्रेजेंटेटिव, तो हर किसी से जिला परिषद होंगे। अब टोटल नंबर ऑफ जिला परिषद चित्तौड़ से कितने निकल के आएंगे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के 10। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ जिला परिषद जो जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं दे विल बी रिप्रेजेंट एज ए जिला प्रमुख, वो किसको चूज करेंगे जिला प्रमुख को, जैसे चेयरमैन को वार्ड मेंबर ने चूज किया था, एज इफ देयर आर 10 तहसील इनसाइड चित्तौड़ दे विल रिप्रेजेंट द 10 जिला परिषद मेंबर्स, और out of 10 how many are required to form the जिला प्रमुख, 6 जिला परिषद कैंडिडेट। तो 6 जिला परिषद कैंडिडेट जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास होंगे उनका क्या होगा जिला प्रमुख होगा। तो जिला प्रमुख जो होता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ द जिला प्रमुख, जिला प्रमुख वर्क इज द सुपरवाइज ऑल द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जितने भी वो जिले के प्रमुख होता है डेवलपमेंट प्रोग्राम आफ्टर consider or maybe the after concern of district collector, both will supervise the development program is going on or not in all cities, all districts. So these are the responsibility. So these are the way how to elections are conducted at the local level. These are the elections conducted on local only. अब सीधा स्टेट, ये क्लास 6 में स्टडी किया हुआ। अब सी how to elections are conducted at the state level. Very simple election, state level to you know very well. State level elections are conducted. Suppose one state is divided into 200 constituency. Suppose Rajasthan ले लेते हैं. There are 200 constituency in Rajasthan. तो each constituency represent the one MLAs. अब one MLA एक constituency कितने एक MLA को represent कर दिए. तो winning MLA only कितने होंगे वहां से? Just a bit. ओके, विनिंग एमएलए होंगे ओनली वन, तो देयर आर 200 कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन के लिए नंबर ऑफ कितने, इट डिपेंड ऑन द लीडर्स कि नंबर ऑफ लीडर्स कितने स्टैंड कर सकते हैं फॉर द इलेक्शन फ्रॉम द ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, बट इलेक्टेड ओनली वन ही होगा, इलेक्टेड मींस द विनिंग एमएलए, तो विनिंग एमएलए विल बी ओनली वन। तो देयर आर 200 एमएलए आएंगे फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के, विनिंग एमएलए कितने होंगे 200 विनिंग एमएलए फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, और 100 अबव या वी कैन से इन अदर वर्ड्स 101 से ज्यादा एमएलए जिसके पास हो गए 101 या 101 से एमएलए जिस पॉलिटिकल पार्टी, सच पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, कौन सी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दे विल फॉर्म द स्टेट गवर्नमेंट बेटा। तो ये स्टेट इलेक्शन होंगे, और इफ बाय द सपोर्ट ऑफ अनदर वन पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में बी फॉर्म, तो दिस पार्टी नोन एज द कोलिशन गवर्नमेंट, सिंपल वर्ड है यूं, दिस पार्टी इज नोन एज द कोलिशन गवर्नमेंट, और इन द क्लास 7 दिस इज नोन एज द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये मेजॉरिटी गवर्नमेंट कहलाती है, जहां पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है। इफ गवर्नमेंट इज फॉर्म बाय ओनली वन सिंगल पार्टी, दैट इज नोन एज द मेजॉरिटी। व्हेन अ गवर्नमेंट फॉर्म बाय मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी,
that is known as the coalition government. So these are the state election. Or in class 8 you will study about the member of parliament. Parliament election, how to conduct. Same type of government on the central level also, but difference between their in place of state. State की जगह वहां क्या होगा? Entire nation divided into different member of parliament. जैसे राजस्थान है तो नंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट राजस्थान से कितने? 25 ओनली. तो 25 MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंट फ्रॉम द राजस्थान. तो ये इलेक्शन इंटायर कंट्री में एक साथ नहीं हो सकते. देयर आर मेनी रीजन. One reason is the lot of resources are required. Second reason, at the same time it is difficult to means the administration part all entire country. There are many reasons. इसलिए इलेक्शन एक साथ नहीं होते तो कैसे होते हैं? 2 और 3 पार्ट में होते हैं. और 2 और 3 पार्ट में कैसे डिवाइड होंगे? मे बी जैसे फर्स्ट लेवल पे इलेक्शन हो रहे हैं, फर्स्ट लेवल पे जैसे 15 स्टेट्स में हो जाएंगे. एट अ सेकंड लेवल 10 स्टेट्स में हो जाएंगे. ऐसे लेवल डिवाइड होती है, बट काउंटिंग सबकी एक साथ होती है. आप जब इलेक्शन होंगे तो यू कैन सी कि फर्स्ट लेवल जो इलेक्शंस हो रहे हैं, इट में भी 5 to 10 स्टेट, राजस्थान, बिहार, लाइक पंजाब, 8 to 10 स्टेट. सेकंड लेवल 5 to 10 स्टेट. ऐसे डिफरेंट नंबर और टोटल नंबर ऑफ स्टेट के इलेक्शन होने के बाद काउंटिंग विल बी स्टार्ट इन ऑल कंट्री. एक साथ काउंटिंग होती है. फिर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेके आएगा सब पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम द गवर्नमेंट. तो दिस आर द 3 कैटेगरी ऑफ इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन आवर कंट्री. If dear you have any doubt related to how to conduct the elections or how the different levels conduct elections, so dear you may be asked. Now we are going to start the elections. So in elections voters make many choice. There are many choice for a voters. If they are not satisfied with the present government, they may be changed. जैसे बिहार में भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इज रूलिंग फ्रॉम लास्ट 15 इयर्स से वही रूल कर रहे हैं. तो दिस टाइम पब्लिक वांट टू चेंज, पब्लिक चेंजेस सारी वहां पे. तो इट मे बी पॉसिबल कि तेजस्वी मे बी फ्रॉम द गवर्नमेंट मीन्स द लालू प्रसाद यादव, सन ऑफ लालू प्रसाद यादव. तो ई मे बी फ्रॉम द गवर्नमेंट तेजस्वी हो सकता है वहां गवर्नमेंट फॉर्म कर ले, या बीजेपी विद गठबंधन विद नीतीश कुमार गवर्नमेंट फॉर्म कर ले. तो इट इज गिव द मेनी चॉइस टू द वोटर्स. वोटर्स के पास चॉइस होती है. 5 ईयर में एक ही बार वोटर्स को चॉइस मिलती है. फिर वो 5 ईयर तक उसी को एडजस्ट करता है जिसको उसने वोट दिया है. फर्स्ट दे कैन चूज हु विल मेक द लॉज फॉर देम. यानी व्हाई आर इलेक्शंस आर रिक्वायर्ड? बिकॉज इलेक्शंस आर रिक्वायर्ड कि दे कैन चूज द सच लीडर व्हिच कैन फॉर्म द गवर्नमेंट, or in government they can make the laws for them. Or no matter, suppose they have elected the sarpanch, so sarpanch can make the laws for the gram panchayat. If they represent give the vote for the state elections, so state government can make the laws for them. If the elections are conducted at the central level, so they can choose who will make the laws for them. तो वो ऐसे इलेक्टेड लीडर्स को चूज करते हैं, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को पावर देते हैं. सच पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट एंड सच पॉलिटिकल पार्टी मेक द लॉज. अब जैसे इन सेंट्रल गवर्नमेंट वी हैव रिप्रेजेंट द बीजेपी. तो बीजेपी ने क्या क्या लॉज बनाए. अब लॉज की बात आ जाती है. तो नाउ वी हैव डिस्कस इन क्लास मींस द अर्लियर इलेक्शन इन क्लास 8 कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. तो इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी हैज फॉर्म द गवर्नमेंट एंड बीजेपी मेक द लॉज. कैसे लॉज बनाए? 370 रिमूव कर दी फ्रॉम जम्मू कश्मीर. अब मेक द लॉज का ही पार्ट आ गया ना. तो इट मींस द जो जम्मू कश्मीर सिटीजन दे मे बी सम टाइम दे नॉट satisfied with this law, maybe they are against this law, but most of populations or most of citizens they are agree. So this through these elections when we represent in parliament or they can make the laws. So they have make the laws to remove the 370 को हटा दिया. सेकंड लॉ की बात करते हैं. इन नॉर्थन स्टेट आसाम और इनमें उन्होंने NRI वाला सिटीजन्स वाला बनाया कि इससे पहले किसी की अगर सिटीजनशिप नहीं है तो उसकी सिटीजनशिप को कैंसिल कर दिया जाएगा. तो NRI वाला इशू भी बना, वो से अपोज किया गया वेस्ट बंगाल और ऐसे स्टेट. तो थ्रू दिस दे कैन मेक द लॉज.
जीएसटी बनाए, जीएसटी का लॉ बनाए, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी। तो ऐसे देर आर मेनी लॉज गवर्नमेंट कैन मेक, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे लिए लॉ बनाते हैं ताकि वी कैन फॉलो दैट, हम उनको फॉलो कर सके। दैट्स व्हाई इलेक्शंस आर रिक्वायर्ड। फर्स्ट पॉइंट इसके लिए। सेकंड वन, okay, they can choose who will form the government. So through these elections we have power to choose the such political party or representatives who can make the government. अब वो मेजोरिटी गवर्नमेंट हो या कोलिशन गवर्नमेंट हो, यानी वी गिव द सच पॉलिटिकल पार्टी to represent और power, तो they can form the government और they can run the government, ताकि वो government चला सके, they can take the major decision. That's why elections are required. Third, they can choose the party whose policies will guide the government and law making. यानी through the election we represent such political party, हम ऐसी political party को represent करते हैं, they can make the laws or they can guide the government कि which type of make should be laws, what type of decisions should be taken, how budget we spend on education, on health. So there are many policies will be follow or will be made by the government. So through this we give the power to the government. Through this they can take the decision, they can make the policies for us, ताकि वो हमारे लिए policies बना सके, गवर्नमेंट को गाइड कर सके इलेक्टेड लीडर कि हाउ टू द गवर्नमेंट फॉर्म, हाउ टू गवर्नमेंट शुड बी रन. दे मे बी क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट इफ दे आर अनेबल टू टेक द good decision. So through this way elections are required to choose any political party. Through the election we can choose the any political party which can form the government, which can guide the government or which can make the laws for us. That's why elections are required. आपको लग रहा होगा all most of point are similar, concern with each other, एक दूसरे से related. So this is the first topic we have discussed, why elections are required. So today we have discussed first topic, why elections are required. If you yes, later on second topic आता है कि those elections are conducted inside our country. हमारी कंट्री में जो इलेक्शंस होते हैं एट द सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल, तो सच इलेक्शन वी कैन से डेमोक्रेटिक और नॉट. क्या जो इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे हैं these are the democratic. Democratic, you know, democratic means that we can trust जो इलेक्शंस हुए तो आउट वी कैन ट्रस्ट ऑन दैट कि दिस आर द डेमोक्रेटिक. अब ट्रस्ट का एक ही वे होता है, हाउ टू फाइंड आउट कि वी आर ट्रस्टिंग ऑन इलेक्शंस इसी और नॉट इलेक्शन इसी पे. तो फर्स्ट पहले मैं बताऊंगा आपको कि हाउ वी कैन से सच इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक. तो फर्स्ट वे ओनली इज द कि इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक और नॉट. और डेमोक्रेटिक और नॉट, हाउ टू फाइंड आउट? देयर इज द सिंपल एग्जांपल. कुछ नहीं करना कि इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक और नॉट. देयर इज द सिंपल एग्जांपल है, इफ व्हाट एवर वोटिंग डन बाय द वोटर्स और दे आर आफ्टर रिजल्ट इफ दे आर नॉट क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट और लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट्स मिले, और वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी कि ये कैसे बन गई, ये कैसे हो गया, लाइक दिस. तो इफ यू आर नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी वन पॉलिटिकल पार्टी, इट मीन्स कि वी आर एक्सेप्टिंग द रिजल्ट, यानी हम रिजल्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं. तो सच इलेक्शन वी कैन से डेमोक्रेटिक. भाई व्हाट वर्क यू आर डूइंग देयर, or if you are not criticizing with your result, so it means what efforts you have done, you are accepting that. भाई आप जो वर्क कर रहे हो उसी वर्क का जो कोई भी रिजल्ट आता है, जैसे सपोज टेक ए सिंपल एग्जांपल, व्हाट यू हैव रिटन इन योर PT2 एग्जाम. आपने PT2 एग्जाम में क्या लिखा? आफ्टर दैट आउट ऑफ 60 का हुआ भी, आउट ऑफ 60 इफ यू आर स्कोरिंग द 50 मार्क्स आउट ऑफ 60, or if you are satisfied with the 50 marks, it means you are accepting the whatever copy correction done by your teacher, you are accepting the result. Sometime when a pretend may be conducted, or it may be you are not accepting your result कि नहीं मेरे 50 नहीं 55 marks होने चाहिए, how I scored the 50 marks,
तो it means if you are not accepting the result, if you are not accepting the result, it means you are not trust on that. जो भी एक्शन हुआ उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, यानी प्रॉपर करेक्शन नहीं हुआ, इट मींस. So whatever result accepted by the people, it means what action they will take means the voting, or they are accepting the result, it means the such elections are democratic. अभी इन अमेरिका इलेक्शंस हुए, डोनाल्ड ट्रम्प has changed, न्यू प्रेसिडेंट बन गए, तो डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या ब्लेम किया? पॉलिटिकल लीडर ब्लेम करते हैं, पब्लिक नहीं करती. पॉलिटिकल लीडर ब्लेम के इलेक्शन में चीटिंग हुई है. तो दिस हैपेंस मेनी टाइम, बट पब्लिक नॉट क्रिटिसाइज. मेरा जो अपना खुद का, दैट इज माय व्यू, हाउ टू वी कैन से कि दिस इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक और नॉट. If government, if public are not criticizing the result, ready to accept the result, it means such election we can say democratic. जैसे for a student के लिए ले लेता हूँ मैं, if anyone student out of 60-50 marks, or he accepting the his marks or her marks, it means the whatever correction work done by the teacher he is satisfied. Or he or she not accepting the this marks, it means that he not satisfied with the correction work. वो करेक्शन वर्क से सेटिस्फाइड नहीं है. तो सच वे वी कैन से डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक. तो व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ द इलेक्शंस, वी कैन से द डेमोक्रेटिक. कैसे हम कर सकते हैं कि इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक है? फर्स्ट पॉइंट, इलेक्शंस आर हेल्ड इन रेगुलर इंटरवल्स. हमारे यहाँ जो इलेक्शंस होते हैं ना वो रेगुलर इंटरवल्स में होते हैं, आफ्टर 5 ईयर. तो रेगुलर इंटरवल्स में इलेक्शंस हो रहे हैं, मतलब हमें डेमोक्रेटिक को मान रहे हैं, इसलिए चांस दे रहे हैं. अगर रेगुलर नहीं होते देन व्हाट हैपेंस, वन पॉलिटिकल पार्टी विल बी रूल कंटिन्यू. सेकंड, ईच वोट, वन वोट वन वैल्यू होती है, हर किसी के वन वोट और एक ही वोट का राइट्स होता है एक सिटीजन को. एंड वन वैल्यू, एक ही वैल्यू होती है उसकी, ऐसा नहीं अलग अलग वैल्यू. वी कैन से डेमोक्रेसी. थर्ड पॉइंट, EC is appointed, we can trust on the EC. All officers work under the election commissioners, and every person have right to vote. हर सिटीजन को राइट टू वोट दे रखा है जो 18 ईयर्स से अबव है. तो ऑन दैट बेसिस वी कैन से आवर इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक. हमारे इलेक्शन जो है डेमोक्रेटिक है. तो दिस पॉइंट टुमारो I will repeat this topic, how the we can say elections are democratic or not. So dear student, today we have discussed the first and often cover up of this second point, कि why elections are required or how the elections are democratic. Okay, so tomorrow we will continue this point, dear. Okay, so dear, have a good day. Thanks. Thank you, sir.